Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 8, 2024. Starting with the first article, no local body members in Jammu and Kashmir from tomorrow. Municipal bodies and panchayat, which is being formed under the 73rd Amendment Act 1992, it is set to complete 5 years term. Next election only after delimitation. The delimitation is done under the Delimitation Act and currently, Jammu Kashmir is going under the delimitation process under the ECI or delimitation का accordingly. There is a changes in the seat number and the seat boundary. तो ये दो प्रिंसिपल होता है delimitation करने का. In 2026, there will be a delimitation for whole of India. Then afterwards, the reservation of the women will be included in that. तो according to that, अभी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर आर ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमेनिंग. People of the erstwhile state have no assembly representation since 2018. तो पहली बात इंपॉर्टेंट इसमें एक ये है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द 370 आर्टिकल, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अडेप्टेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड पंचायत राज एक्ट 1989 amended by the Home Affairs that year. It talks about the three tier of grassroots level democracy like other parts of the country. And अगर इलेक्शन नहीं होगा, if there will be no local body member, then there will be a question regarding the democratic process, grassroots level governance in Jammu Kashmir. So जल्दी से जल्दी इलेक्शन होना चाहिए. And right now we discussed 1 month back, the Supreme Court of India have given direction to the center that by 30 September 2024 the election should happen in the state assembly also and also the local bodies. तो एक ये प्रिंसिपल हो गया. Then coming to the next article, where is Belgrade to Serbia? सर्बिया कहाँ पर है? तो आई थिंक इट इज इन बाल्कन रीजन. सर्बियन क्राइसिस, सर्बियन वॉर, सर्बिया का नाम आता है इन द सर्बियन नेशनलिस्ट मूवमेंट 1914 के पहले, और उसके बाद ही फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है. तो सर्बिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और बिग कंट्री है इन द बाल्कन रीजन. बाकी जो आसपास में कंट्री है वो कोसोवो हो गए, मॉन्टेनेग्रो, नहीं ऊपर में कोसोवो हो गया, फिर बोस्निया हो गया, क्रोशिया एक्सेट्रा, ये आसपास में कंट्री. बाल्कन रीजन क्यों कहते हैं उसे? बाल्कन इसका कोई रीजन बोलते हैं लॉजिक है क्योंकि वैसे? हम्म। बाल्कन रीजन इसको बोलते हैं क्योंकि वहां पर बाल्कन माउंटेन्स है इसलिए पूरा. तो एक बॉर्डर जो रीजन है वो बाल्कन है. और बाल्कन रीजन में एथनिक ग्रुप बहुत ज्यादा है. तो देर इज ऑलवेज अ क्लैश, देर इज ऑलवेज अ कंटेस्टेशन बिटवीन द सेवरल एथनिक कम्युनिटीज. तो बाल्कन नेशनलिज्म का बात हमेशा नहीं करेंगे, स्पेसिफिक नेशनलिज्म, सर्बियन नेशनलिज्म. कोसोवो, कोसोवो जस्ट लाइक कश्मीर इन सर्बिया, वो भी बोलते हैं कि मुझे अलग होना है. तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. And from Serbia, the Ural Mountains also passes by. ओके, हीरो माउंटेन. Regarding the next article, Hasina continues her party sweeps Bangladesh election. BNP, Bangladesh Nationalist Party, lost, and we talked day before yesterday that India always support the people of the Bangladesh and their right towards the democratic freedom, democratic process. But generally, the business class in India and all the elites support the Sheikh Hasina party because of her stand towards democratic process. Second, against radicalization in in Bangladesh, and third is strategic autonomy with respect to the powers like China and India. तो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. दे आर करंटली सपोर्टेड इनडायरेक्टली बाय चाइना एंड पाकिस्तान. तो ये एक इम्पोर्टेंट है. खलीदा जाया वो हार गई फिफ्थ टर्म में. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल है शेख हसीना. हर फादर वॉज मुजीबुर रहमान, इनका असैसिनेट किया गया था. तो पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी, तो ये पता होना चाहिए.
Then regarding the GST revenues reveal a dissonance in consumption growth across the state. GST collection is been increasing year by year. जब पहली बार जीएसटी आया था तो इट वाज ओनली 60 to 70 thousand करोड़ पर मंथ. अभी 1.5 लाख करोड़ हैव बीन रीच्ड. उससे भी ज्यादा हो रहा है. दिस शोकेसेस देयर इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी. दिस शोकेस देयर इज अ इंक्रीज इन कंजम्पशन ग्रोथ, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. अब आते हैं कि ये क्या बोल रहा है आर्टिकल. दिस इज आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द डिस्पैरिटी इन कंजम्पशन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट. कोई स्टेट ज्यादा दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द जीएसटी, कोई स्टेट इज कंट्रीब्यूटिंग लेस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर स्टेट विद हायर ग्रोथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका. लोअर ग्रोथ आंध्र प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा. तो गुजरात, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. तो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कंजम्पशन ट्रेंड ज्यादा है. जीएसटी मतलब कैसे कंजम्पशन ट्रेंड निकाल सकते हैं. बिकॉज जीएसटी मीन्स इट इज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट का सेल होता है तब जीएसटी पे करना पड़ता है. तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट सेल बढ़ेगा, जीएसटी ज्यादा होगा. तो ये डिस्पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स. सबसे ज्यादा कलेक्शन जीएसटी का कहाँ होता है तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में एक तरह से जॉइंटली सेकंड, और गुजरात भी है. उसके बाद फिर बाकी सब स्टेट आते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. कौशिक, जैसे इसमें जीएसटी का रिवेन्यू आया सेंटर के पास, तो स्टेट और सेंटर में फिर डिवीजन कैसे होता है टैक्स का? इट इज डन टू बाय द जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जीएस जो काउंसिल होगा वो डिसाइड करता है एक तो पहले कि कैसे एडिशन होगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी. और उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल जब टैक्स डिवोल्यूशन हो मिल जाता है, टैक्स सरकार के पास आ जाता है, इट इज डन अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन. कि आप उसको बोलते हैं कि स्टेट को इतना मिलना चाहिए, स्टेट को इतना मिलना चाहिए, ऐसा होता है ओके, कलेक्शन फिर इसमें में. एक हम्म, हम्म, बोलो. मतलब ये जो जैसे एक स्टेट है वहां तो गुड्स बन रहे हैं बेसिकली, लेकिन सेकंड स्टेट में जाके सेल हो रहे हैं जहाँ कंज्यूमर है उनका। हम्म, तो फिर किस स्टेट को फिर बेनिफिट मिलेगा इसका, मतलब जो फाइनेंस कमीशन हो या फिर जहाँ कोई डायरेक्शन? हम्म। दोनों को मिलेगा. जहां पर बन रहे हैं वहां एक्साइज ड्यूटी लगेगा, बाकी सब लगेगा. लेकिन जहां पर सेल हो रहा है तो इनपुट टैक्स है ना, तो हर एक लेवल पर टैक्स है जीएसटी का. लास्ट में जो बर्डन है ऑन द कंज्यूमर, जो जहां तक स्टेट का हुआ है वहां तक उसको मिलेगा, उसके आगे स्टेट का बाद फिर दूसरे स्टेट को मिलेगा फिर. तो उसमें एस जीएसटी का कॉन्सेप्ट है ना. एस जीएसटी और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड हो गया, तो सेंटर का हो गया सेम है और स्टेट का सेम है. जीएसटी वाले जब ओके। डॉक्यूमेंट पढ़ना तो फिर. कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल. झारखंड बीजेपी प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी पहले थे, और हेमंत सोरेन जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा. मुक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा टॉक्स अबाउट झारखंड पीपल, पुअर, ट्राइबल्स, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, सोशलिस्टिक पैटर्न रहेगा इनका. तो वेलफेयरिज्म पर ज्यादा फोकस रहेगा. और बीजेपी का कॉन्सेप्ट पता ही है, कांग्रेस का आइडियोलॉजी पता है. देन नेक्स्ट आर्टिकल. विलेज प्रोटेस्ट आफ्टर द टीचर हेल्ड फॉर बीइंग मॉइस्ट सपोर्टर. मॉइस्ट सपोर्टर इन छत्तीसगढ़, मोहला, मनपुर, आमंगगढ़, चौकी डिस्ट्रिक्ट. द मैन वॉज allegedly involved in putting of the Maoist बैनर. तो माओइस्ट यहाँ पर जो है इट इज रिलेटेड टू सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. माओइस्ट इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट. तो माओइस्ट इज बैंड अंडर द यूआईपी 1967. तो इनको एक तरह से प्रोटेस्ट किया गया. बेलागावी. बेलागावी इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज issue between the Karnataka and Maharashtra, where the people of both Kannada speaking and Marathi speaking resides, and they both draw historical connection and they talk about कि बेलाकली मेरे साथ होना चाहिए. तो ये एक इशू रहता है. तो ये पता रिगार्डिंग राम टेम्पल ओपनिंग ब्रिंग्स होप टू द मोरादाबाद ब्रास ट्रेडर. तो मोरादाबाद is known for the GI tag in the brass trading and it stood around 20,000 करोड़ रुपीस एनुअल टर्नओवर है मोरादाबाद में, ब्रास सिमर में. तो हर एक स्टेट जब हम लोग बात करते हैं वी टॉक अबाउट वोकर फॉर लोकल, वी टॉक अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट.
तो मुरादाबाद को जाना जाता है ब्रास ट्रेडिंग से। फिर आगरा को जाना जाता है लेदर फैक्ट्री से, और टूरिज्म तो है ही। उसके बाद देखा जाए तो कांचीपुरम सिल्क। तो वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ से जाना चाहिए। तभी आपका जो लॉन्ग टर्म विथ विजन है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर product, setting of the highest standard in the particular product, so that no country can use phytosanitary measures against you. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रमोट करें। तो मुरादाबाद इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रास फैक्ट्री फ्रॉम द पीटी परस्पेक्टिव। तो इसमें एक क्वेश्चन है, करूँ ना, कि ब्रास एलॉय तो ये कैसे बनता है बिटवीन टू कंपाउंड, या मेटल बोल सकते हैं। ब्रास इज मेड ऑफ आई थिंक एक तो कॉपर होता है और जिंक होता है शायद। ट्रू। कॉपर ठीक है। एंड जिंक से। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, Andhra Pradesh government ask आंगनवाड़ी वर्कर to join duty। आंगनवाड़ी वर्कर, तो वो तो वी डिस्कस टू टू वीक्स बैक कि आंगनवाड़ी वर्कर फेसेस सम ऑफ द चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज टाइमली वेजेस उनको नहीं मिलता है। सेकंड इज द वेज डिस्पैरिटी बिटवीन द normal sanitation worker, normal PWD worker, and Anganwadi worker is huge. Normal PWD worker, sanitation worker earns around 15,000 rupees. Anganwadi worker generally earns around 7 to 10. Disparity. Third, there is no wages act, no security guarantee for the Anganwadi worker. They are being roped in by the central government for every activity. ICDS के लिए मिड डे मील, आप सर्व शिक्षा अभियान में आप लाओगे, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग इनफ जॉब सिक्योरिटी। तो ये एक इशू हो गया। तो तीसरा हुआ कि विमेन से रिलेटेड चैलेंजेस है कि घर से आना बाहर नहीं मिलता है। फिर और दूसरा कि आंगनवाड़ी वर्कर के पास अपना जो सेविंग नेट सेविंग है वो भी बहुत कम रहता है, तो घर से भी कभी पैसा देना पड़ता है। कोविड के बाद स्पेशली आंगनवाड़ी वर्कर फेस्ड सेवरल चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मिंग ऑफ द ड्यूटी। तो इसलिए बोला गया कि गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किए आंगन ब्रिंगिंग द सर्विस ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर अंडर द एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA। उनकी स्ट्राइक किया गया। agitation demanding in the hike in the salary, regulation of the services and retirement benefit। तो आंध्र प्रदेश में 2 और 3 हफ्ता स्ट्राइक चल रहा था, हम लोग हमेशा न्यूज में आ रहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट बोले कि उसको एक आंगनवाड़ी वर्कर को एसेंशियल सर्विस के अंदर मिलाया जाए। तो यू कैन नोट करूंगा, ऐसी हर एक स्टेट के अंदर होना चाहिए ताकि उनको एक एम्पावरमेंट हो सके। तो कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, रबर रबर इंडस्ट्री प्लांटेशन मोस्टली इन द ट्रावंकोर रीजन केरला, हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन रबर इन इंडिया। तो रबर से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट पता होना चाहिए कि कैसे होता है, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, एक सेकेंड। पहली बात है, रबर प्लांटेशन इज ए सेंट्रल टू द ट्रावंकोर केरला, एंड वहां पर प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम which had been handed to the additional opportunity of fresh attack on the CPI movement। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केरला में होता है। सेकंड, उसका क्लाइमेट रिवर देख लेते हैं। रबर बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट। तो रबर बोर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडी, रबर एक्ट 1947। It needs around 25 to 34 degrees centigrade. Rainfall 2000 to 4500, 80% relatively humidity। तो बोर्ड हेडक्वार्टर स्टैट्यूटरी बॉडी रबर एक्ट के अंदर में बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ पे होंगे? ऑब्वियस बात है केरला में होंगे, क्योंकि केरला हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करते हैं रबर बोर्ड। तो रबर से रिलेटेड कुछ कुछ 3-4 इश्यूज है। पहला बात है कि दे आर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द सिंथेटिक रबर, they are being produced by the chemicals in the factories। Second is most of the people that are engaging in the rubber are belonging to the landless labor and also the plantation worker। They are meager salary, work time issue,
और फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं रहता, ये एक चैलेंज हो गया। तीसरा हो गया वर्ल्ड वाइड रबर्स जो प्रोडक्शन है, इट इज बीन स्टैग्नेटिंग बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेटिंग इन द प्राइसेस, इसी कारण एक हो गया। और चौथा बोल सकते हैं कि रबर प्लांटेशन इंक्लूड्स clearing of the forest which also harms the biodiversity of that region। तो ये पांच छह चीज इंपॉर्टेंट है। 65% ऑफ द नेचुरल रबर इज कंज्यूम बाय द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टायर्स के लिए सबसे ज्यादा, हेवी इलेक्ट्रिक टायर्स, ट्यूब्स एक्सेट्रा। तो पीएलआई स्कीम भी किया गया है रबर के लिए। और रबर प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर रबर प्रोडक्शन इंसेंटिव, ये दो स्कीम है फॉर द प्लांटेशन ऑफ न्यू रबर प्लांट। तो ओवरऑल वी लर्न अबाउट थ्री की टर्म्स। तो पहला रबर बोर्ड, सेकंड इज रबर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, केरला हाईएस्ट प्रोड्यूसर, नेचुरल रबर इज मोस्टली फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट स्कीम्स रबर प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, एंड सेकंड वुड बी पीएलआई फॉर द रबर इंडस्ट्री। Coming to the next article, Maldives suspend three deputy minister for remarks against Narendra Modi ji, our prime minister. The issue was that Narendra Modi ji visited Lakshadweep and for the promotion of the tourism in the Lakshadweep region. तो ट्विटर में देयर वाज अ ट्रेंडिंग दैट डे दैट इट वाज अ काउंटर टू द मालदीव्स टूरिज्म। तो मालदीव्स डेप्यूटी मिनिस्टर्स रिमार्क्ड एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू, made anti Hindu remarks against Modi ji and also our whole community। उसके बाद फिर there was a sustained drive boycott Maldives। उसके बाद फिर the Maldives suspended three deputy ministers for that। तो this showcases कि if you are on the post, responsible accountable post, you should be respectful, you should maintain decorum and sanctity towards the post। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया और ये एक तरह से हैम्पर कर दे रिलेशनशिप बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया। Coming to the next article, Rajnath Singh, our defense minister, leaves for 3-day visit to UK to deepen the defense ties। तो यूके के साथ डिफेंस टाइज अगर सोच सकते हैं तो क्या हो सकता है कि जो यूके इज अ लीडिंग, आल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पीएनजी, प्रैट एंड गैम्बल इंजन होता है, रोल्स रॉयस हो गया, बाकी सब इंजन को प्रमोट करते हैं यूके, बनाते हैं वर्ल्ड में, फ्रांस, यूके, यूएस एंड रशिया जेट इंजन बनाते हैं। तो यूके का हो गया। सेकेंड वुड बी कि आप एनएसजी के लिए आप प्रमोट करोगे, मोर डिफेंस कोलैबोरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन में बात करोगे, और जो अपने इन्वेंट्रीज है, जैगवार हो गया बाकी सब, वो भी आप ले सकते हो यूके से। तो डिफेंस टाई ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस एंड फ्रांस, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं। तभी एफटीए का बात हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो साइन होगा। मिजोरम, तो मिजोरम टू कंटिन्यू हेल्पिंग डिस्प्लेस चीन कुकीज, सेज सीएम। तो वी डिस्कस कि जो कुकी पीपल है, नागास पीपल, नागालैंड, कुकीज बोथ नागालैंड एंड मणिपुर, और मीती मणिपुर, चीन ये भी बिलोंग करते हैं, ब्रू रियांग त्रिपुरा, असम एक्सेट्रा, तो वो रीजन में बिलोंग करते हैं। तो हर एक ट्राइब पता होना चाहिए कहाँ पर रहते हैं, उनका क्या डिमांड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन। एंड एक तरीके से क्या हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश के टाइम पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज अप्लाई की गई थी, अभी जो इतने सारे एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है बैकग्राउंड में। हाँ, स्टार्टिंग में तो उन्होंने स्टार्ट किया था विद द यूज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो 1930s और 20s और उसके पहले भी तो हर जगह ट्राइबल पॉपुलेशन में इशू हुआ था विद रिस्पेक्ट टू बिरसा मुंडा और उनका जो उगलान बोलते हैं, तिमुलित उगलान, तो वो भी उसी कारण ही हुआ था। तो ब्रिटिश का जो मकसद था लॉन्ग टर्म की, आप उसको इंटीग्रेट करो फॉर द लार्जर क्रिश्चियन कॉज, क्रिश्चियन लाइट। सेकंड की डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सो दैट इंडिया कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड फुल्ली। थोड़ा बहुत आज भी रिपरकशन। तमिलनाडु टू टैप इनटू सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फॉर
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, जहां पर उन्होंने बोला कि वी आर डेवलपिंग ए ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग द स्टेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। उसके लिए क्या किया जाएगा? तो सेवरल एमओयू वे साइंड, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सोलर्स हो गया, फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाए, एप्पल सप्लायर हो गया, JSW एनर्जी के लिए, गोदरेज, बाकी सब में साइन किया गया। और डिजाइन सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो सेमी कंडक्टर एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी या GIM, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, ये हर जगह होता है, हर एक स्टेट में होता है। हर एक स्टेट अपना जो ब्रांड है उसको, इमेज को प्रमोट करना चाहता है। तो ये इट टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द टैलेंट पूल बाय 2 लाख पीपल बाय 2030। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइनिंग, चिप सेट, सिस्टम ऑन चिप, IP कोर्स, सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन, DLI इसको बोलते हैं, इसमें प्रमोट किया जाएगा। और ये हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एक्सेट्रा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कोविड केसेस 5756 धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ड्यू टू द कोल्ड वेदर एंड JN1 वेरिएंट। Coming to the next article, in first IAF C-130 with Garud Commando makes night landing at Kargil. So C-130 is has been procured from US. It is a heavy lifting aircraft. एक और एक C-30 है, एक C-17 है, और जो US से एक लिया गया, नाम याद नहीं यार। तो 3 एयरक्राफ्ट है। इट इज ऑल्सो फॉर द रिफ्यूलिंग, इट इज फॉर द हेवी लिफ्टिंग ऑफ द ट्रूप्स, पैरा ट्रूपिंग के लिए और सबके लिए आता है, तो इम्पोर्टेंट है US के कारण। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन कारगिल, IAF C-130 with flexible courses, IIT open door for the students studying in far flung areas of India. तो we talk about IITs में 2015 से था कि न्यू कोर्सेज हैव बीन डिजाइंड। फॉर एग्जाम्पल IIT मद्रास में डेटा एनालिटिक्स कोर्स, इन विच एनीवन कैन enroll in that and get a degree on data analytics. Similarly, other courses, for example, Ropal, Guwahati, Mandi, Patna, Kanpur, have now set a change in this notion. तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का बात करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ITI। तो अप स्किलिंग होना चाहिए। तो अप स्किलिंग विल बी डन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द ITI, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एट अ लोअर लेवल, उसके फिर आप IIT और इंस्टीट्यूशन आप जोड़ दोगे, तभी हो सकता है। तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम ऑफर्ड अ कोलैबोरेशन बिटवीन NSDC एंड टीम लीज। तो 18 क्रेडिट दिया जाएगा, स्किल इंडिया डिजिटल के द्वारा, स्ट्रेटेजिक डिलीवरी पार्टनर है। तो बैचलर भी दिया जा सकता है, इसमें डिप्लोमा भी दिया जा सकता है, और मास्टर डिग्री भी दिया जा सकता है। तो ये अच्छा चीज है। तो इससे क्या होगा, दो फायदा होगा कि फार फ्लंग एरियाज में एक डिजिटल पेनिट्रेशन होगा फॉर विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, अप स्किलिंग हो सकता है, और दूसरा कि आप काम करते करते अप स्किलिंग कर सकते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं। तो 3 काम एक साथ हो सकता है इसमें। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट नाम जो है, कीवर्ड है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज वर्किंग, स्किल डिजिटल इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डिलीवरी पार्टनर है वो NSDC है, अंडर विच IIT इज ऑफरिंग ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर द फार फ्लंग एरियाज, स्टूडेंट्स इन द फार फ्लंग एरियाज, ऐसे बोल सकते हैं इसको, NSDC। और ये कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, indefatigable peria nambi. It is said in order to usher in good thing to benefit man, the entire universe will conspire if need to be. This is true of the Pancha Samskaram of the Acharya Ramanuja. तो रामानुजा, वल्लभाचार्य एंड Adi Shankaracharya talks about Advait Vedanta, नॉन डुअलिटी। आत्मन और ब्रह्मन जो है वो अलग नहीं, वो एक ही है। जो बात करते हैं रामानुजाचार्य, ही टॉक्स अबाउट क्वालिफाइड Advant, Vedanta, Advait, qualified Advait. It means
कि जो क्वालिटी ऑफ बीइंग, ऐसे रोज है तो रोज का कलर और रोज का सेंट और रोज का जो क्वालिटी है वो एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। तो वो रामानुजाचार्य बात करते हैं। वल्लभाचार्य टॉक्स अबाउट द डुअलिज्म, कि अलग है ब्राह्मण और आत्मन, तो डिफरेंट आइडियाज हो गए। एंड रामानुजा का गॉड के रिलेटेड क्या स्टैंड था? ही टॉक्स अबाउट भक्ति कल्चर, कि आप भक्ति सिर्फ और सिर्फ दिमाग लेके नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द शंकराचार्य, वो बोलते थे, आदि शंकराचार्य, कि यू कैन यूज योर माइंड फॉर टॉकिंग विद द गॉड, फॉर कनेक्टिंग विद द गॉड। तो हमेशा वो बात करेंगे माइंड का। और लेकिन जो रामानुजाचार्य हैं वो बात करेंगे भक्ति का, कि लव से आप गॉड को पा सकते हो। तो भक्ति का स्टार्टिंग होता है बिटवीन द नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। भक्ति मूवमेंट जो साउथ में स्टार्ट होता है, अलवर नयनार हो गया, उनका जो कनेक्शन विथ रामानुजाचार्य हो गया, उनका टीचिंग फिर नॉर्थ में चल जाता है। रामानंद और बाकी लोग उनके डिसाइपल रहते हैं 2-3 जगह, वहां से भी फैल जाता है पूरा। तो रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हैदराबाद। हैदराबाद में ना मानसी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है रामानुजाचार्य भक्ति। कमिंग टू चेक नेक्स्ट करना आर्टिकल, पड़ेगा, I'm not. आईटी दिल्ली टीम मेक्स फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन लैंड रिस्क मैप फॉर इंडिया। तो लैंड रिस्क मैप पर बात किए थे कि वी नीड अ डिजास्टर स्टैक फॉर द सिल्क यारा टनल, कि वापस से द टाइम लैग बिटवीन द फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड द इंट्रैपमेंट ऑफ द वर्कर्स शुड बी लेस, ताकि नेक्स्ट डिजास्टर को आप टैकल कर सको। वैसे ही हाई रेजोल्यूशन लैंड रिस्क में, जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा ज्यादा है, जहां पर टेक्टोनिक शिफ्ट ज्यादा होता है, इट इज ऑन द टेक्टोनिक सब सॉइल मूवमेंट ज्यादा है, या फिर डिसेंडेंस हो जाता है सब सॉइल मूवमेंट का, तो फिर जरूरी है कि ऐसा एक इंडियन लैंडस्लाइड सब्सिडिबिलिटी मैप होना चाहिए। तो आईटी दिल्ली ने तैयार किया इसको। तो इसको बोल सकते हैं यूनिक प्रॉब्लम है, डेडली प्रॉब्लम है, लोकलाइज होता है, इट ओनली अफेक्ट 1 to 2% पॉपुलेशन। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री को खतरा होता है कि आप जाते हो रोड से, आप ट्रैप हो गए, निकल नहीं सकते। तो जीएसए की तरफ से बात किया गया 1.5 लाख सच इवेंट हो चुके हैं। तो जियो सड़क एक ऑनलाइन नेट सिस्टम है दैट हैज अ डेटा ऑन द नेशनल रोड नेटवर्क इन इंडिया। it is helpful because it will alert, I think it will can give indication ki where the landslides happen mostly, so that you can be aware. तो एक important ये हो गया। Then India landslide susceptibility map is the first of the kind for being a national scale, leaving no location in the country under. हर जगह बता सकते हैं कि कहाँ पर vulnerability ज्यादा है एंड मिटिगेशन किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी दिया जा सकता है इन द वेल नोन रीजन ऑफ द foothills of the Himalaya, Assam, Meghalaya region उस तरफ, and Western Ghat साउथ में, some region of the Eastern Ghat also, and north में उड़ीसा and आंध्र प्रदेश। It also involved in investigation and mitigating of landslide। जीएसआई, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एनडीएमए के द्वारा ये बनाया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट की टर्म इसमें हो गया, लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैप कहाँ कहाँ पर हो रहा है उसको जांचने के लिए, दूसरा जियो सड़क रोड्स के लिए। इट इज ऑल्सो ऑनलाइन अवेलेबल, फ्री वेब बेस्ड इंटरफेस, पब्लिकली अवेलेबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, panspermia, life from other one world to the next। panspermia claims that planet were seeded across space with life brought in by interstellar bodies। जो हम लोग बात करते हैं साइंस साईफाई मूवीज में, कि बाहर से लोग आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आए। इंडिया में लाइफ, इंडिया जो अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हो ही नहीं सकता था। तो इसको बात करते हैं, दे हैव बीन इंजेक्टेड फ्रॉम द प्लैनेट नेविगेटिंग द रिगर्स ऑफ द इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल्स। और इट इज अ मॉडर्न वर्जन दैट आइडिया ऑफ पैंसमेरा एडवांसेस 3 स्टेजेस। फर्स्ट है एस्केप फ्रॉम प्लैनेट, फिर आप इंटर प्लैनेटरी स्पेस पर जाओगे एंड लैंडिंग ऑन अनदर प्लैनेट। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कोशिश करते हैं बताने का, प्रूफ करना मुश्किल है इसको। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, इसरो शुड हेल्प एवरीवन एंजॉय फ्रूट्स ऑफ द न्यू साइंस मिशन। तो आदित्य L1 डिस्कस कर दिए, इट इज फॉर प्रोबिंग द सन्स कोरोनोस्फेयर और सन एटमोस, उसका जो
लेयर्स है उसको जांच करने के लिए। उनके अंदर में फिर इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, VELC कोरोनोग्राफ रहेंगे, सोलेक्स, हीलियो। ऐसे नाम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिर ये पूछ सकता है हरियाणा में बाकी समय भी, ये नाम दे देगा, बोलते इट इज रिलेटेड टू विच मिशन, तो पता होना चाहिए। एस्पेक्ट, पापा, एग्जैक्ट पता नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम अवेयर होना चाहिए कम से कम कि स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। फिर कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, the data from the RT-L1 will be sent to the Kodai Canal. Kodai Canal, I think it is in Tamil Nadu, which commenced in 1901. It also follows the XPOSat mission, जो X-ray polarimetry satellite, years of the AstroSat. जेम्स वेब से अभी कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एवरीवन शुड बी सेलिब्रेट द न्यू हाई, पीपल एट लार्ज। इसरो भी बात कर सकते हैं कि कैसे फ्रीली अवेलेबल ऑफ द डेटा टूवर्ड्स अदर कंट्रीज ऑल्सो, GPS करते। तो जब धीरे धीरे बजट बढ़ेगा and there will be a new technological innovation by the ISRO, then long term ISRO will be acting as a soft power। अभी तो हो ही रहा है, लेकिन और बड़े चार्जेस के हिसाब से, नासा जैसे। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, एविएशन प्रोफेशनलिज्म विच इंडिया मस्ट ड्रॉ फ्रॉम। तो अभी जापान एयरलाइंस एयरबस कोलाइडेड विद द जापानीज कोस्ट गार्ड बॉम्बार्डियर जैस 8 एयरक्राफ्ट एट टोक्यो कनाडा। वहां पर जब अर्थक्वेक तभी हुआ था, और 379 पैसेंजर ऑन द JL प्लेन एस्केप्ड विदाउट बट विद 5 फर्टिलिटी, तो बहुत कम फर्टिलिटी हुआ। तो ये दिखाता है कि कैसे JL फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट है क्लियर टू द लैंड इन विच एक्नॉलेज बाय द पायलट्स। तो इंडिया में ये क्वेश्चन क्यों लाया जा रहा है? तो इंडिया में केरला में एक बार हुआ था, फिर दूसरा नेपाल में क्रैश हुआ था। और इंडिया में हमेशा एक इशू उठता है सब स्टैंडर्ड प्लेन, बिकॉज इन इंडिया द प्लेन मैन्युफैक्चर्ड इन US and EU, first they used and after 10 to 15 years the retrofitting of the plane is being done and they are bought at a cheaper rate। तो उसके कारण थोड़ा मेंटेनेंस का इशू होता है इंडिया में। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, दे दे आर आल्सो बीन क्वेश्चन बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटीज कि ये जो होते हैं ये टेक्निकल डायरेक्टर नहीं होते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होते हैं, इनको बाहर से बैठाया होता है, इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज कम होता है, एंड देयर इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन दैट ऑल्सो अपॉइंटमेंट ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन उठता है हमेशा, तो इसलिए स्टैंडर्ड फोकस करना चाहिए। तो एयर इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कवर अप ऑफ सीरियस इंसिडेंट with the blessing of the DGCA, जो ये बता दिए। वेक अप कॉल फॉर द एयरलाइन, क्राइटेरिया शुड बी वेरी हाई, पायलट का स्टैंडर्ड, उसके साथ साथ क्रू का स्टैंडर्ड, ऑन ऑन और वेरी स्टैंडर्ड, नॉट ऑन सीनियोरिटी। सिर्फ सीनियोरिटी में नहीं होना चाहिए, एक ACR होना चाहिए जिसमें आप बात कर सको कि इनका रोल कैसा रहा है, इनका लॉन्ग टर्म कैसा काम किया इन्होंने, उसके बाद उनको प्रमोशन होना चाहिए। फिर एयर इंडिया मैनेजमेंट नीड्स टू डू सम सोल सर्चिंग व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन ट्रेनिंग एंड सेफ्टी। they should learn from the Japan एयरलाइन इंसिडेंट। तो दो या तीन इशू है जो हम लोग बात कर ली। And what is the main authority that is regulating the aviation sector in India? DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो करते हैं सिविल एविएशन, एविएशन से रिलेटेड है, एयरपोर्ट से रिलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिर्फ एयरपोर्ट। तो एरोप्लेन के लिए ये हो गया, ये एयरपोर्ट के लिए AAI हो गया, AAI। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, स्ट्रक्चर नेगोशिएशन एज अ बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स। डिसेबिलिटी राइट्स, स्ट्रक्चर नेगोशिएशन, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये लग गया। Disability rights, most structured negotiation has been successful in addressing the issues such as inaccessible automated ATM, point of sale, pedestrian signal, and service provider website। हाँ, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक तरह से डिसेबिलिटी की तरफ में काम करना चाहिए पूरा। जैसे इंडिया में ऐसे कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, CCPD हो गए, और जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आई थिंक, तो वो भी बात करते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए इन द पब्लिक फोरम, एंड ऑल्सो देयर शुड बी some kind of grievances mechanism available in the private sector also, so that more and more environment can be created
फॉर द सेफ स्पेस ऑफ द डिसेबिलिटी पर्सन। तो डिजिटल पेमेंट में भी ऐसा होना चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए कि आप पेमेंट करें, आपको पता चल जाए कि हाँ, कोई अगर हियरिंग एड का प्रॉब्लम है, किसी देखने का है, तो हर एक के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर डिसेबल फ्री, डिसेबल के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपना ट्विक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। उसी की बात हो रहा है पूरा। तो स्ट्रक्चर, नेगोशिएशन टेक्निक, बैरियर फिर पार्टिसिपेशन इन मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। तो कमिंग टू द लेटेस्ट द एडिटर। तो क्वालिटी कंट्रोल कल बात किए, तो इसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का बात हुआ इसमें, तो डिस्कस कर चुके हैं कल। सेकेंड है कि फेथ इन पॉलिटिक्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड आवर फेथ इन द इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज नॉट फॉलिंग शॉर्ट। फॉलिंग शॉर्ट बोल रहे हैं, लेकिन आई ठीक है, it is being questioned for the various issue. For example, crores are being spent in election, politicization of the bureaucracy, फिर mafiaization of the politics, उसके बाद फिर partisanship showcased by the bureaucracy, transparency and citizen welfare है, लेकिन ओवरऑल सिटीजन पार्टिसिपेशन कुछ कुछ जगह में कम होता है। वोटर टर्नआउट हो सकता है कि कहीं कहीं कम हो, 46%, 58%, 60% रहता है। फिर इलेक्शन फंडिंग का बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का बात करते हैं, उसमें भी इशू है। फिर क्वेश्चन ओवर द ईसीआई अपॉइंटमेंट सिस्टम एंड ईवीएम टैंपरिंग का इशू आता है कहीं ना कहीं। तो फेथ इन पॉलिटिक्स तभी हो सकता है जब आप सिस्टम को रोबस्ट बनाओ। तो दूसरा क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन बिफोर द ग्रैंड ओल्ड पार्टी इज कि ऑपरेशन पार्टी राम टेम्पल अटेंड करे कि ना करे। अगर वो अटेंड नहीं करेंगे तो उनका कोर आइडियोलॉजी, जो बेस है, लार्जर जो हिंदू बॉडी हो गए, उनका इशू होगा। अगर करेंगे तो उनका जो कोर आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म है वो खतरे में आ जाएगा, ऐसा बोलना चाह रही है। लेकिन ये क्वेश्चन बोले कि नेहरू जी हु डिड नॉट अटेंड द कंसेक्रेशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, तो डेमोस्ट्रेटिंग इज कमिटमेंट टू द सेकुलरिज्म आइडिया ऑफ कीपिंग रिलीजन अवे फ्रॉम द स्टेट अफेयर। तो बात ये नहीं है, बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी he attended the construction of the Somnath temple. This showcases that India supports the civilization and the historical tradition of our country. तो वो और भी दुनिया में नहीं है, तो आप कर सकते हो। जो एक इतिहास है, जो हेरिटेज है इतने साल का सोमनाथ टेम्पल का, तो इसलिए वही राम मंदिर के हिसाब से भी। तो रिगार्डिंग टू द चाइल्ड मैरिजेस, rise in child marriages in West Bengal or in India, most of the child marriages occur in Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra. They accounted for the more than 50% of the child marriages in the country. और डिक्रीज हुआ, लेकिन ओवरऑल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हर 5 साल में होता है एक जगह से, वो बताते हैं कि बंगाल रिमेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। 41% 18 ईयर्स ऑफ एज से नीचे जिनका शादी हो जाता है। तो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, सेक्सुअल जेंडर वायलेंस, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज इज ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, अब्यूज और बायोलॉजिकल इशू भी हो जाता है, तो ये बोल सकते हैं। पॉलिसीज, व्हाट आर द पॉलिसीज दैट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट? कन्याश्री परिकल्पना, it is a conditional cash transfer scheme aimed at incentivizing the schooling of the teenage। आप स्कूल भेजो, आपको पैसा मिलेगा डायरेक्टली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। 10 साल हो चुका है और उसको यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन अभी देखा जाता है इट इज बेनिफिटिंग 81 लाख गर्ल्स